नमस्कार. अर्थार्थ वेल्थच्या अर्थवेधमध्ये आपलं स्वागत आहे. जसं तुम्हाला मागच्या वेळेस आम्ही कमिटमेंट दिलं होतं, की शेअर मार्केट रिलेटेड आपण सगळी माहिती घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. पण बेसिकली शेअर मार्केट ऑपरेट होतं कुठून आहे आणि कोणासाठी होतंय, कशा पद्धतीने होतंय, तर पहिले आपण त्या थोड्या गोष्टींवर प्रकाश टाकणार आहोत आणि आजच्या आपल्या ह्या स्पेशल एपिसोडमध्ये स्पेशल व्यक्तिमत्व जे आपल्याला अवेलेबल झालेले आहेत, ते म्हणजे BSCचे चीफ ऑफिसर्स जे आहेत आपले समीर पाटील सर. तर समीर पाटील सरांचं आपल्या एपिसोडमध्ये आज स्वागत आहे. सर नमस्कार. एक की आपण इंटरव्ह्यू हिंदी, इंग्लिश, मराठी तिघही लँग्वेजमध्ये करणार आहोत आणि दुसरी गोष्ट ही की तुम्ही तुमचा मौल्यवान वेळ आज आम्हाला ह्या चॅनलसाठी देतायत. तर सर आम्हाला एक थोडक्यामध्ये तुमचा प्रवास BSC सोबतचा आणि तुमची स्वतःची पर्सनल जर्नी की तुम्हाला यामध्येच यावंसं का वाटलं? एक म्हणजे बाकीच्यांनाही त्या गोष्टीचं जरा इन्स्पिरेशन राहील, की समीर सरांनी BSC किंवा शेअर मार्केट ही गोष्ट चूज करताना इट्स अ लाँग जर्नी तुमची. तर जसं मार्केटसाठी आपल्याला शॉर्ट टर्म नाही लाँग टर्म विचार करायला लागतो, तर तुमची ही लाँग जर्नी कशी होती? At the outset, first let me thank you for giving me this opportunity here to express myself, not only about myself, about BSc and also the new launches that we have done in the recent past. तुम्ही म्हटल्याप्रमाणे हिंदी, इंग्लिश आणि मराठी तिन्ही भाषेत बोलायचा प्रयत्न करीन मी. माझा प्रवास म्हणजे I started my career. I'm a science graduate from Mumbai University. I did my PG from Narsee Monjee in investment management in 98. My first batch, I was selected in Cargill Investor Services as the campus recruitment in 98. I was there for around 6 years. I got a lot of exposure there, trading international commodities, currencies, equities, derivatives, indexes. आणि ते जे एक्सपोजर होतं ते दॅट वॉज अ रिअली very good exposure. We used to cater to foreign qualified nationals, NRIs, overseas corporate bodies, managing hedging desks. So it was a real very good exposure at that age, I thought, and at that time also, when derivatives were not even launched in India. Yeah. So it was a really very good exposure. I was there for 6 years. After that, I joined MCX in 2003-4 as one of the core team. And I think to be the right time at the right place is also important. We managed to launch precious metals, gold, silver, crude oil, copper. All those contracts were launched by me in MCX. Today I'm happy to see, when I look back and see in India, when people trade and they refer to the gold price, it is always plus or minus of what the price the MCX is trading. So it gives a very happy feeling or glad feeling for me when you look back and look at the journey, that yes, we have done something in life, so which has attained such heights. After that, when I was in MCX, I got exposure to look after global exchanges like the Bahrain Financial Exchanges, the DGCX, the Dubai Gold and Commodity Exchanges, the Singapore mercantile exchange, so on and so forth. So 6 exchanges at one point of time. I joined BSC in 2015 to set up the entire commodities, eventually heading the all businesses in since 2019, and when was promoted as chief business officer in 2019. Sir, I just interrupt you. Why BSc? When I did commodities, and then I thought now it's time for me also to explore further a bit into equity derivatives, and I thought BSc would require more services of mine, and it is a 150-year organization. It is proud to be a part of the BSc team. We will celebrate 150 years next year. Is India's oldest institution, Asia's oldest institution, stock market, and the world's fastest stock exchange with a response time of 6 microseconds. So it is really proud to be a part of such a great institution, and that is the reason I thought I should be a part of, and I'm glad that I am here, and satisfied at the same time as well. And I think since I've been here, I'm contributing a fair bit to it, to see the growth and success of the institution. Great. Sir, when was BSc SME platform launched? Actually, we have started directly the question. SME platform
I think I cannot forget this date in my life. It is 13th of March 2012, because 13th of March also, it's coincidence, happens to be my birthday. Okay, So it is, that's great. it's a coincidence, or I mean, I cannot forget this date. So it's 13th of March 2012 when the SME platform was launched in BSE. Yeah. Sir, but I just want to ask you, BSE चैनल ने SME जो लॉन्च करना चाहा वो किस हिसाब से, मतलब MSME है, अदर कंपनीज है उसमें, लेकिन SME अगर हम बात करें BSE में, BSE was launched in 1875. 150 साल पूरे हो रहे हैं. यस तो तकरीबन 5000 कंपनीज लिस्टेड है, लार्ज साइज कंपनीज में लिस्टेड है. टिल यस, 2020 नवंबर इतने सारी कंपनीज लिस्टेड है. अगर आप सही मायने में देखो तो SMEs आर द बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. यस 6.5 करोड़ SMEs है. 120 मिलियन जॉब क्रिएट किया है उन्होंने. तो उनको भी चाहिए कि उनका ग्रोथ हो. उनका ग्रोथ फैसिलिटेट करने के लिए हम लोग ने SME प्लेटफॉर्म लॉन्च किया. और आज आप अगर देखो तो उसमें 463 कंपनीज Yes. लिस्टेड है. उसमें से 180 कंपनीज जो है ऑलरेडी मेन बोर्ड माइग्रेट हो चुकी है. ओके, दैट्स ग्रेट. बट सर SME में एक बार जो पर्सन होती है या कंपनी जो होती है वो अगर BSE में आ जाती है, ठीक है, सो ये उनका थिंकिंग लेवल जो होता है कि BSE में जाना है, IPO लॉन्च करना है वहाँ पे, सो ये कब स्टार्ट होता है? मतलब अभी कंपनीज तो बहुत सारे लोग निकाल लेते हैं, कोई प्रोप्राइटर है, कोई प्राइवेट लिमिटेड में जाता है. इट्स अ टर्नओवर बेस. वहाँ पे जब टर्नओवर आता है तो BSE में ऐसा कुछ क्राइटेरिया है कि इतना टर्नओवर होगा तो BSE में आपको एंटर कर सकते ऐसे हैं आप लोग? बेसिकली टर्नओवर बेस्ड क्राइटेरिया कुछ नहीं, बड़ा क्राइटेरिया ज़रूर है. जैसे कि आपकी 3 साल से कंपनी कार्यरत होनी चाहिए. यस. उसका उसमें से 1 साल मिनिमम ऑपरेटिंग एबिटा पॉजिटिव होना चाहिए. उसका नेटवर्थ 25 करोड़ से नीचे होना चाहिए. ओके और उसका एक वेबसाइट होना चाहिए. ओके तो इसके चलते ये सारे जो ये कुछ क्राइटेरियाज है जो मीट होने चाहिए, मैच होने चाहिए, तब जाके आप BSE SME प्लेटफॉर्म अपने आप को लिस्ट करा सकते हो. और एक प्राउड फीलिंग जो SME कंपनी है जब वो BSE में लिस्ट करती है तो उसको एक प्राउड फीलिंग आती है. यस. बट सर ये सब तो एक मेंटल सेटिस्फैक्शन हो गया कि क्राइटेरिया हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है. इट्स अ प्राउड फीलिंग कि BSE में रजिस्टर हो चुके हैं हम लोग. बट एक प्रेशर भी क्रिएट रहता है कंप्लायंस का. मेनी पीपल आस्क अस कि कंप्लायंस बहुत डिफ़िकल्ट है, तो कंप्लायंस करने के लिए, मतलब अगर कंप्लायंस करना है तो इसलिए भी बहुत सारे लोग जो है वो IPO में रजिस्टर या BSE में रजिस्टर नहीं करते, क्योंकि इतनी सारी कंपनीज है अभी हमारे यहाँ पे. MIDC है, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर हैपन इन आवर महाराष्ट्र बेसिकली. तो 463 ये काउंट अगर हम देखें तो ये बढ़ना भी चाहिए वहाँ पे. बिल्कुल बनना चाहिए. उसके ऊपर हम लोग बहुत तैयारी कर रहे हैं. ये हम सोच रहे हैं कि ये 463 को हम लोग 5000 कितने जल्दी कर या सकते हैं, उसके ऊपर हम कार्यरत कर रहे हैं. When I say we are working on it, it is not only on paper. बहुत सारे एसोसिएशंस हैं इंडिया में, उनके साथ टाइप कर रहे हैं, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं. उनको कैसे एक ही प्लेटफॉर्म पे एक ही साथ लेके आए उसके ऊपर हम लोग विमर्श कर रहे हैं. तो ये सब करते हुए, और दूसरा चीज़ मैंने जैसे बोला, सिर्फ प्राउड फीलिंग नहीं होते हैं. एक अब बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया, कंप्लायंस. जब SME कंपनी लिस्ट होती है स्टॉक एक्सचेंज पे, BSE पे, उससे क्या होता है, फर्स्ट वो कंपनी को विजिबिलिटी मिलती है. सेकंड, कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है वो सही मायने में उसको समझ में आता है, क्योंकि देन यू हैव टू फाइल योर रिटर्न्स, यू हैव टू डू ऑल दोस थिंग्स व्हिच विल कीप यू अफ्लोट इन द एक्सचेंज. उसके साथ साथ क्या होता है, एक आपका क्रेडिबिलिटी बढ़ जाता है मार्केट में. व्हेन यू हैव क्रेडिबिलिटी, एक ट्रस्ट बन जाता है. ट्रस्ट बनने के बाद में जब आप बैंक्स को या किसी के पास फाइनेंस के लिए आप अप्रोच करते हो तो आपको वो एक अलग नज़रिए से देख रहे हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस कर रहे हो, आपके सारे क्राइटेरियाज क्लियर है, और एक ओनरशिप जो है, आपकी क्रेडिबिलिटी, ट्रस्ट आपकी बिल्ट होती है. उसके चलते आपको एक्सपोजर मिलता है, ट्रस्ट मिलता है, प्लस आपको ग्रो करने के लिए अगर आपको कैपिटल चाहिए, आप कैपिटल रेज कर सकते हो. फिर आप उसको आप एक्सपेंशन में यूज़ कर सकते हो, इनोवेशन में यूज़ कर सकते हो, जो सीमित था पहले अपने आप तक, तो ये सारे रास्ते खुल जाते हैं. यस सर. बट अभी अगर
इतने सारे बेनिफिट्स है, डेफिनेटली यहाँ पे लोगों को जब सुनने के लिए मिलेगा कि उनके लिए बेनिफिट्स कैसे कैसे रेज होते अगर वो रजिस्टर होते, और कंप्लायंस इज़ नॉट अ बिग इशू एक्चुअली, जो हम लोगों ने बना के रखा है कि कंप्लायंस करना इट्स अ बिग इशू। अगर ऑथेंटिकली काम कर रहे हैं सब लोग, तो 3 साल का जो पेपर्स है उनका ऑडिट रिपोर्ट से वॉट एवर BSE वांट्स, वो तो कंप्लायंस होना ही चाहिए उस चीज़ में। उसके बाद तो अलग कंप्लायंस कुछ नहीं होता होगा, जो कोई ट्रैक रिकॉर्ड है जो कुछ है वो तो रेगुलरली ईयर बाय ईयर जो ऑडिट के हिसाब से आएगा वैसा ही आने वाला है, चेंज नथिंग चेंज उस चीज़ में। फिर भी अगर देखा जाए तो एक इम्पैक्ट बहुत अलग हो जाता है कि रजिस्टर कर रहे हैं यहाँ पे, बहुत से लोगों को पता नहीं होता है। कंपनीज तो शुरू हो गई होती है, लेकिन एजुकेशन जो है लिस्टिंग में आने का, ये होता क्या है, ये प्रोसेस क्या होती है, सो लोग आपको कोऑर्डिनेट कैसे कर सकते हैं, आपके पास आ कैसे सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी बार ऐसा होता है कि अभी हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि जिसकी एक शुगर फैक्ट्री है, उस बंदे को रजिस्टर करना है। आई टॉक विथ चारी सर ऑल्सो उस चीज़ के लिए, लेकिन उन लोगों को पता ही नहीं है कि करना कैसे है। सीए जो होते हैं उनका एक ऑडिट रिपोर्ट निकाल लिया, वो बोलते हैं आप जाओ वहाँ पे आपको करवा के देंगे। सो एक्चुअली पीपल नो हाउ हम लोग प्रोसेस में कैसे जाए उस चीज़ के, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको प्रोसेस में आना है लेकिन प्रोसेस पता नहीं है राइट वहाँ पे। राइट अगर मेट्रो सिटीज़ देखें तो वहाँ पे प्रोसेस पता होती है, लेकिन मेट्रो सिटीज़ के अलावा जहाँ पे लोगों को रजिस्टर करवाना है वहाँ पे प्रोसेस पता ही नहीं है। तो प्रोसेस क्या हो सकती है इस चीज़ में? देखो जो एसएमई कंपनीज जो है वो सिर्फ मेट्रो सिटीज़ के लिए सीमित नहीं है, वो करेक्ट। टायर 1 टायर 2 टायर 3 सिटीज़ तक भी करेक्ट। फैले रहती है। तो उसमें क्या होता है, हम लोग टाइम एंड अगेन हम लोग इवेंट्स करते हैं, हम एसोसिएशन के साथ टाइप करते हैं, इवेंट्स करते हैं, उनके एसोसिएशन में सबको बुलाते हैं, उनसे उनको प्रेजेंटेशन करते हैं, बाकायदा प्रेजेंटेशन करवाते हैं, और प्रेजेंटेशन में बताया जाता है कि क्या बेसिक क्राइटेरियाज है, आप कैसे अपने आप को लिस्ट करा सकते हो, क्या जानकारी निकाल सकते हो, क्या किस क्राइटेरिया में किस तरीके से फिट हो सकते हो, क्या बेसिक क्राइटेरिया है, ये सारे हम उनको बताने के बाद में वो सिलसिला वहाँ से चालू हो जाता है। जब 400-500 लोग प्रेजेंटेशन में आते हैं, उसमें से 5 लोग आके आके इंटरेस्ट दिखाते हैं। इंटरेस्ट तो दिखाते हैं। ये दिखता, इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क यस दो। सर। श्योर। जब हम लोग 5,000 लोगों को मिलते तब जाके 50-100 लोग आके आगे इंटरेस्ट दिखाते हैं, उसमें से कल्मिनेट जो होता है वो नंबर और भी कम हो जाते हैं। करेक्ट। मतलब लोगों को इस चीज़ का अवेयरनेस आप देना भी चाहे, फिर भी कनेक्टिविटी जो होती है लोगों के साइड से, कुछ लोग सोचने में टाइम लेते हैं बिल्कुल उस चीज़ में। बिल- जो आपके पास इंक्वायरी करते हैं उनमें भी लोग एक जो होता है कि टाइम बिंग की इंक्वायरी हो गई है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में टाइम चला जाता है देखो, कि या इम्प्लीमेंटेशन इंक्वायरी से लेके इम्प्लीमेंटेशन से लेके एग्जीक्यूशन तक का जो टाइम फ्रेम बहुत क्रूशियल होता है। यस। कोई कोई कंपनी तो 3 महीने में ही सारा चीज़ करके वो 4 महीने में लिस्ट होके उसका इशू निकल भी जाता है, और कोई कोई कंपनीज में ऐसा देखा गया हम लोग ने पास्ट में कि जहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट्स अटके हैं, उनको क्लियरेंस नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला, तो वो सब एक सिनेरियो होता है, बट नेवरदलेस ये प्रोसेस है, और ये प्रोसेस में देरी तो है। So next question for you. How many SME companies have got migrate to the main board of BSC हाँ, जैसे मैंने from SME? पहले कहा 463 कंपनीज जो हमारे एस में Yes. लिस्टेड है, उसमें से 180 कंपनीज जो है अभी मेन बोर्ड में माइग्रेट हो चुकी है। ओके सर, लेकिन एक है कि मेन बोर्ड में जब माइग्रेट होते हैं तो बेसिकली उसमें क्या एक अलग चीज़ क्या होती है? देखो एसएमई जो लिस्टिंग जो है वो एक अलग सेगमेंट है, और मेन बोर्ड करेक्ट। जो है वो अलग सेगमेंट है। जब आप एसएमई में आते हो, आप लिस्ट करते हो, आपको रिकग्निशन मिलती है, ट्रस्ट होता है, बिल्ड। when you move on to the next level which is called the main board listing में तो सारे बड़े बड़े कंपनियां हैं, तो करेक्ट। आप जाके उनके साथ में आपका ओहदा बढ़ जाता है, रेपो। आपको एक फील अलग से मिल जाती है, उसका यस। क्राइटेरिया जो अलग है। 25 करोड़ के ऊपर सारी कंपनीज जो है, जो जिसका नेटवर्क 25 करोड़ के ऊपर है, वो सारी मेन बोर्ड लिस्टिंग है। सर एक सब क्वेश्चन इसमें ये भी था कि अभी हम लोग 25 करोड़ के ऊपर जो कंपनीज आती हैं वो डेफिनेटली बीएससी में है, लेकिन बहुत सारी कंपनीज ऐसी देखने में आई है कि जिनका 1000
का टर्नओवर है या प्रॉफिट मार्जिन है, अभी तक वो कंपनीज रजिस्टर होने के लिए रेजिस्टेंस दिखा रही है, तो ये रीजंस क्या हो सकते हैं उस चीज़ में? देखो वो तो कंपनी के ऊपर निर्भर करता है कि उनको लिस्ट कराना है नहीं कराना। उनको अगर कैपिटल की ज़रूरत नहीं है और उनको एक्सपेंशन की ज़रूरत नहीं, इनोवेशन की ज़रूरत नहीं है और उनको लगता नहीं है कि उनको लिस्ट कराना है, तो दैट डिपेंड्स अपॉन ईच या एंड एवरी। क्योंकि हम लोग जब बात कर रहे हैं बहुत कि सारी आना कंपनीज हैं। चाहिए उन बिल्कुल लोगों ने, बिल्कुल क्योंकि एक है ये मार्केट है, इकोनॉमी है, अपने ही देश का नाम आगे जाने वाला है बिल्कुल उस चीज़ में। बिल्कुल। और अगर वो नंबर ऑफ कंपनीज जो बड़ी कंपनीज है वो अभी तक आई नहीं है तो मैं आपको आंकड़े देता हूँ। मैं 3 साल पहले मैं शेंजन में था, शेंजन स्टॉक एक्सचेंज में। तो वहाँ पे एक 4th फ्लोर पे ना उनका एक म्यूज़ियम था। तो मैं म्यूज़ियम में गया था, आई वॉज वेरी प्राउड। मेरे साथ में सारे वर्ल्ड के बड़े बड़े एक्सचेंजेस के CXOs थे। आई वॉज लकी इनफ टू बी अ पार्ट ऑफ दैट डेलीगेशन। और जब मैंने देखा वो म्यूज़ियम में फर्स्ट वॉल पे नाम लिखा था, नंबर ऑफ लिस्टेड कंपनीज अक्रॉस द ग्लोब, एंड आई वाज वेरी वेरी हैप्पी टू सी कि उधर इंडिया का नाम पहला था और ग्रेट BSE का नाम सबसे पहला था। एंड BSE वाज द ग्रेट लार्जेस्ट एक्सचेंज टू हैव 5000 कंपनीज लिस्टेड। उसके बाद में आप देखोगे तो दूसरा जो नंबर का एक्सचेंज था उसमें और BSE में 2500 कंपनीज का फर्क था। ग्रेट। तो ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण यस बात सर, है। क्योंकि ये हम लोग क्यों बात करें, लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोग कहाँ से कहाँ तक यस है या कहाँ यस। पे पहुँचे हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हाउ मच फंड वी आर रेजिंग फ्रॉम एसएमई? We have raised close to 5,300 crores till then on the SME platform. ये ओके, बहुत ही बड़ी बात है for यस the SME companies. एक्चुअली। बट फंड रेज जब होता है सर, तो अभी जैसे हमने बोला कि 5,712 CR, तो ये जो फंड रेज होता है, तो ये फंड रेज किस तरीके से होता है बेसिकली? So investors आते हैं, हम्म इसमें कंपनी में मैनेजमेंट देखते हैं, प्रमोटर्स देखते हैं, बोर्ड देखते हैं, उनके प्रमोटर्स को देखते हैं हम्म और प्रोफेशनलिज्म को देखते हैं, बैलेंस शीट देखते हैं, उनका प्रोडक्ट देखते हैं, उनका एक्सपेंशन, ग्रोथ, नंबर्स, फाइनेंशियल्स, टारगेट्स, ये सारा चीज़ देखने के बाद में एक इन्वेस्टर जाके इन्वेस्ट करता है उस करेक्ट। कंपनी में और ही बिकम्स अ ग्रोथ पार्टनर इन द जर्नी। आई एम आस्किंग यू वेरी बेसिक क्वेश्चन एक्चुअली, बिकॉज व्यूवर्स को वो चीज़ पता होनी चाहिए कि जब फंड रेज होता है तो वो ऑन व्हाट बेसिस इन्वेस्टर भी आते हैं और तो फंड रेज यही कैसे आपको होता मुझे है। पता है यस, एग्जैक्टली। एक्चुअली आप जो सीक्वेंस बोल रहे हो वो सामने वाले को पता होना चाहिए, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा फॉर्मल हो जाएगा कि ये बोला हुआ है और ये होता है वहाँ पे। सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द 463 लिस्टेड एसएमई कंपनीज? आज मेरा मार्केट कैपिटलाइजेशन इज 96,000 crores। Okay, great. It's a huge amount यस actually. यस यस। And और ऐसे में क्राइटेरिया तो आपने मुझे लिस्टिंग का बताया ही है वहाँ पे, लेकिन कुछ अलग और उसमें आता है कि जो आपने बताया है वही सिर्फ? देयर आर फ्यू ऑफ द क्राइटेरियाज, बाकी तो वो सारे टेक्निकल्स है यस, जो हमारे ऑलरेडी वेबसाइट पे है। या दीज आर द बेसिक क्राइटेरियाज। या सो थैंक यू सो मच सर कि आपने एसएमई के लिए ये इंटरव्यू शॉर्ट बट स्वीट नोट पे आपने हमारे लिए अवेलेबल करवा दिया। थैंक यू सो मच कि आज आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए और बहुत सारे एसएमई के लोग हैं या जो नए मार्केट में आने वाले हैं या जो पुराने हैं जिनको लिस्टिंग में आना है, लेकिन कुछ तो दिल में होता है ना कि नहीं अभी नहीं जाना है या तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लॉट्स ऑफ पीपल्स की जिनके टर्नओवर प्रॉफिट्स बहुत अच्छे हैं लेकिन वो आ नहीं रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि एक अलग से कंप्लायंस क्यों करना है, जीएसटी का एक है, टैक्सेशन का एक है और ये अलग से लेना है। तो डेफिनेटली उन लोगों को ये पता चलेगा यहाँ पे कि रजिस्टर करना इट्स रिपो के लिए भी एक अच्छी चीज़ है, प्रॉफिट के लिए भी एक है, और कैपिटल जो खड़ा करना है आगे जाके फ्यूचर में, इट्स नॉट फॉर अस ओनली, नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। सो थैंक यू सो मच कि आपने बीएससी का एक इंट्रोडक्टरी जो इंटरव्यू हम लोगों को दिया है एसएमई के लिए और बाकी सब चीज़ों के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।